Hello, Namaskaram. I have changed my. I have made my flute alive basically. Name is now Tara. This is Tara, this is Luna, and this is Radha. This is the stage in which you can realize even non-living entities. I think a lot of people understand the story of the Ramana Maharshi who enlightened a cow. But cow is still, you can say that, living being. But everything is a living being. There's nothing like non-living in this world. The separation is stupid. We created the separation so that we can use it. So it's just the same thing, no? How you dehumanize someone so that you can rape them, you can kill them, because you think they are not human. You are human. The same way, you de-life all of these things, and then so that you can use them. It's materialism, core materialism. I have started keeping something with me. I walk in the nights. Now, you know the situation. All kinds of demons are moving around. Who knows who you encounter, no? So even though you maybe lose the battle, but still it's not like you will go without fighting. That's the main point. Maybe we'll change this. We'll not change, but yeah, what do you say? Improve it. There is a there is somebody who is conscious, no? There's something very weird going on in India right now. Very weird. It's like everybody knows what happened. Everybody in India. Yet the entire Bengal system is living in like somehow they can fake it. Somehow they can deny reality by using some rule, by using some kind of, oh, this provision, that provision, or we didn't find that, or this happened and that happened, like that. And they are doing it like in front of everyone, in front of the media, in front of the people, in front of the Chief Justice, in front of the President, in front of the Prime Minister. Every 16 minutes, remember this, 16 minutes, every 16 minutes, a woman is getting raped in India, every 16 minutes. You guys keep making reels on Palestine only, no? That's the same thing that happened in India before also. So how many people got killed in the Bengal famine? But nobody talks about that. But oh, Jews were killed. Oh my God, Holocaust happened. So basically, the people who killed Indians, they fought against Hitler and they won. And they become the hero. At what expense? How many lives did you kill? Now it's clear basically. It is very clear. You don't expect from anyone. You take matters into your own hand. The government is there to serve people, right? It's for civilization. If the civilization, if the government itself is hacked by the demons who are not civilized, who don't know how to act civilized, what's the point? Oh, we have to do this paperwork and then we have to do this and then we have to do this. Yeah. I ask all of these CGI, all of these guys, no. Assume somebody does something to your daughter in front of you, okay? Then will you do paperwork, all of these things, or you will do something at that point of time?
Your forget or your paperwork? Like the system has put people in a procrastination mode, in which they are like, we cannot do anything. What if this happened? What if that happened? What if that happened? What do you mean, what if that happened? Why are you even having those feelings? You are truthful. You are fighting for the right thing, right? Then all of these what ifs, whoever is responsible for them, those people are not on your side. Because otherwise they wouldn't let the what if happen. They're like, okay, you do. I'm with you. We are on the side of the justice. All of them have some stake in not getting justice delivered. Because if one example is set, in which some big brat, okay, some people who have power, now they are in jail, then the entire thing will change. You till now they are playing the same game only, no? All the movies that you see, like a corrupt priest sitting with the most hated gunda of the world, who is also an MP, huh? The Brahmin, he tells guides the gunda, basically Sukracharya. The Shankaracharya is basically Sukracharya. Like one thing I clearly don't understand is how can someone put a flag of the Congress and put Tilak? Same Nehru who refused to build Somnath Mandir. The same people who refused to even acknowledge Ram is alive. The same people whose Krishna Janmabhoomi is still occupied. किसका तिलक लगा रहे हो तुम? किसका? ये तो अपना ही तिलक लगा रहे हैं. इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है. Like, how can things not change if every Indian stands and say कि जस्टिस नहीं दिया तो जला देंगे? हमको नहीं पता तुम्हारे सिस्टम. हो क्या गया ना कि खाकी वर्दी पहन के उसको तो लगता है कि उसकी तो पत्नी ही नहीं है, उसका तो घर ही नहीं है ना? कि समाओ उसको तो, चूंकि वो गुंडों के साथ मिला हुआ है, तो बेसिकली जितने भी गलत लोग हैं सब मिले. पावर भी जिसके पास है, बंदूक किसके पास है? पुलिस वाले के पास और गुंडे के पास है, और दोनों साथ में मिले हुए हैं. उनको लगता है कि तो ये क्या करेंगे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो मोमबत्ती लेकर घूम सकता है ऐसे हाथ में. लाइक प्लीज प्लीज गिव अस जस्टिस, प्लीज प्लीज गिव अस जस्टिस, प्लीज प्लीज गिव अस जस्टिस. भीख मांग रहे हो क्या? हक मांग रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो. वो पुलिस वाला तुम्हारा नौकर है, नौकर. तुम देते हो उसको सैलरी. चौकीदार होता है ना, जैसे कम्युनिटी का लगाते हैं, तुम उसको लगाते हो कि हाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, तुम उसको पैसे देते हो. जो बाउंसर होते हैं, जो सेलिब्रिटी लेके घूमते हैं कि हाँ इसका प्रोटेक्शन करना, वो है पुलिस वाला तुम्हारा. लाइक लाइव गैस लाइटिंग कर रहे हैं यार लोग. बांग्लादेश में तो कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसा है. अरे भाई तुम, मैं बता रहा हूं ना, इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको सत्य से मतलब ही नहीं है ना. सच क्या है उनको मतलब ही नहीं है उन लोगों को. वो तो सत्य को तोड़ने में लगे हुए हैं. जितने बार तुम तोड़ोगे उतना गलत एग्जाम्पल सेट होगा और उतना तुम इजीली तोड़ पाओगे इसको.
मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए तो रात को भी कोर्ट खुल जाते हैं भाई, समझ रहे हो? क्या हो गया था उसके साथ, क्या हो गया था? सब कपिल सिब्बल उठ के आ जाते हैं रात को। अरविंद केजरीवाल के नौकर हो तुम कि जनता के नौकर हो? और यहां पे तो अभी तक सब कुछ पता होने के बाद भी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे लोग ढंग से। एक वो नकली से बंदे को पकड़ा दिया, ये तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। ये कितनी बार यूज हो चुकी है, फिल्मों में नहीं देखा क्या तुमने? कि एक ऐसे ही किसी इंसान को बोलो देखो तुमको पैसा दे देंगे इतना, तू यहाँ पे इस गुनाह को अपने ऊपर ले ले, ठीक है? अब वो गरीब है, उसको लगेगा कि हाँ चलो मेरे फैमिली का तो कुछ हो जाएगा, देन ही विल सरेंडर। और जितने भी बाकी जो लोग हैं पैसे वाले, जितने भी जिन लोगों ने किया है वो सब छुट जाएंगे। ये तो कितनी सिंपल ट्रिक है यार। This is the new one. I have this also now. Now we will go more and more towards blood. क्योंकि जब गुंडे घूम रहे हैं, जब पुलिस वाले गुंडों के साथ है, तो भाई कौन प्रोटेक्शन करेगा तुम्हारी? मतलब मैं 3.5 महीने हो गए मेरे को पैदल चलते हुए, ठीक है? 4 जगह पुलिस कंप्लेंट किया मैंने, 4 जगह। क्या बोलते पुलिस वाले? ओहो उन्होंने आपको पीट दिया, कोई कुछ नहीं कर सकते, वो तो जिलाध्यक्ष का बेटा है। अच्छा, भगवान के नाम पे चल रहा हूं मैं, भगवान के नाम पे। जिलाध्यक्ष को ऊपर है कि भगवान ऊपर है? बट उनको तो ऐसे ही लगता है ना, ये संसार तो ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही चलता जाएगा, हम तो ऐसे ही पाप करते रहेंगे। कौन है देखने वाला? कौन है तुमको कर्मों को देखने वाला? उल्लू बना रहे हो भगवान को, उल्लू बना रहे, चालू बन रहे। नाइफ उसीलिए है ना, अब ज्यादा से कोई बकचोदी करेगा तो सेल्फ प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना अपनी। तुम लोगों का आइडिया नहीं है ना, तुम कभी सड़क पे घूमे नहीं हो, किस किस टाइप के गुंडे घूमते हैं। हर कुत्ता अपने गली में ना, हर गांव में शेर बन के घूमता है यहाँ पे, हर कुत्ता। उस कुत्ते को पता नहीं है बेटा, एक बार तेरा गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया ना, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो जो भौंक रहा है ना जिसको, वो इसलिए भौंक रहा है कि जो किसी को भौंकना दिए जा रहा है। क्यों भौंकेगा भाई तू मेरे पर? तुम सड़क पे जा रहे हो, लोग ऐसे कमेंट पास करेंगे, ऐसे वो देखेंगे तुमको, क्या जोकर हूं मैं? हाँ, एंटरटेनमेंट करा रहा हूं तुम्हारा। ये सब अहंकार से आता है। कुएं के मेंढक। लो ना हथियार, तो पुलिस वाले तुमको नहीं बचाने वाले हैं यार। तुम लोगों को मेरे को समझ में नहीं आता, आज तक समझ में कैसे नहीं आया यार। ये वो पुलिस वाला जिसको करप्शन, जिसकी साइड इनकम है, ठीक है, उसने नॉर्मलाइज कर दिया उसको कि ये तो कमाने का साधन है। वो पुलिस वाला जिसको एक एमपी का फोन आ जाए तो वो लाइक हाँ ये तो नहीं होगा, उस पुलिस वाले से तुम प्रोटेक्शन मांगोगे, वो पुलिस वाला तुमको प्रोटेक्ट करेगा। बेसिकली उस केस में तो यही देखना है कि तुम्हारे रेप पावरफुल इंसान ने किया है तो पुलिस वाला मदद नहीं करेगा, यदि वो वीक इंसान ने किया है तो हो सकता मदद कर दे, यदि उसके दया हो तो, यदि इसको काम करने का मन हो तो, यू नो। नहीं तो वो भी कहीं दारू पी के पड़ा होगा। भाई पुलिस तुम्हारी नौकर है, नौकर, चौकीदार है वो तुम्हारी, वो सोसाइटी की। जैसे सोसाइटी में चौकीदार होता है ना, वो तुम्हारा नौकर होता है, वैसे ही तुम्हारी सिविलाइजेशनल सोसाइटी की चौकीदार है पुलिस। और वो जो चौकीदार है वो अब गुंडों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये लड़की इतने बजे बाहर जाएगी, अब देखो ये इसमें ये रूल होता है, तो एक काम करो तुम ये वाला एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो तो हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं परखवाएंगे, तो तुम फ्री हो जाओगे। वो उनका कंसल्टेंट बना हुआ है। संदेश खाली तो भूल ही गए तुमको लगता है संदेश खाली तो ऐसे ही है, फिल्मों में होता है।
कि सामने से ऐसी लड़की को उठा के लेके चले जाते हैं कि हाँ आज इसके साथ खेलना है, ओ आज इसके साथ खेलना है, आज इसके साथ खेलने का मन कर रहा है। भाई ये रियल में हो रहा है, तुम्हारे सामने हो रहा है। कौन सा जस्टिस मिल गया तुमको? अब तो मैंने डिसाइड कर लिया ना, इसीलिए मैंने चेंज किया ना लुक। पुलिस वाले सबसे बड़े गुंडे हैं भाई, सिर्फ ड्रेस पहनने से कोई वैसे तो बस धार्मिक नहीं हो जाता ना। कभी करके देखना ना, तुम अपने लाइफ में करके देखना, कोई जेन्युइन चीज को लेके तुम जाना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, और फिर देखना पुलिस वाले तुम्हारी मदद करते हैं कि वो तुमको जाके तुमको ही फंसाते। और उसके दूसरे में देखना कोई पावरफुल इंसान है, वो मेरे बेटे ने तो ऐसी बड़ी ओडी ली थी, वो तो नशे में चढ़ा दी उसने, क्या हो सकता है सर, एक काम कीजिए ये पैसे रखिए और उसको छोड़ दीजिए। वो फटाफट पुलिस वाला सब कुछ कर देगा, सारे रूल्स रेगुलेशन सब याद आ जाएंगे उसको एकदम से। भाई पुलिस स्टेशन में रेप हुआ है मुंबई में, पुलिस स्टेशन में। क्या बात कर रहे हो यार तुम, तुम्हारी याददाश्त ही नहीं है यार। मतलब पुलिस वाले को देखना, कभी आम इंसान को सैल्यूट करता है? वो नौकर आम इंसान का है कि वो नौकर किसी पॉलिटिशियन का है? पॉलिटिशियन पैसे देता है उसको, हाँ? टैक्स कौन देता है उसका, सैलरी के? इस पुलिस को तो हटाओ सीधा ना, क्योंकि ये तो बहुत ही क्लियर है कि ये पुलिस यदि रहेगी तो वो तुम्हारे साथ तो कभी नहीं आने वाली है, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही ऐसे क्रिएट किया गया है कि वो हमेशा पावरफुल के साथ ही रहेगी। सेल्फ सस्टेनेंस नो। हाँ ये तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैंने 4 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, मैंने देखा उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। मतलब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में कंप्लेंट किया मैंने, और पुलिस वाला उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे सिर पे यहाँ पे चोट लगी हुई है, खून निकल रहे हैं, मेरे पैर पूरे कपड़ों पे खून है, तब मैं गया हूँ उस पुलिस वाले के पास। तो क्या क्या करेगा इंसान? तो इससे बढ़िया तो यही है ना कि अपने पास हथियार रखो, तुम जो कर सकते हो करो, क्योंकि वैसे भी वो सामने वाला तो कुछ करने नहीं वाला है। तो बेसिकली ये रूल रेगुलेशन में फंसता है अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान सोचता है यार मैं सिस्टम के हिसाब से चलूँ, मैं रूल के हिसाब से चलूँ, है ना। तुमको लड़ाई नहीं करनी है, तुमको पुलिस को जाके बताना है, वो गुंडे को पकड़ेगी, बट पुलिस गुंडे को पकड़ ही नहीं रही है, तो इससे अच्छा तो मैं ही लड़ाई कर लेता यार, कुछ तो करता। अब तो आग लगने का टाइम आ गया है ना, अब नहीं बुझने वाली है आग, देखना तुम, बुझने ही नहीं दूंगा मैं। जब सही चीज ऐसे हो जाए ना कि ओ ये तो किताब में ऐसे लिखा है, ये तो रूल में ऐसा है, अच्छा ये ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे बिना हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं हो सकता वहां पे। एवरी 16 मिनट्स, याद रखना इसको, एवरी 16 मिनट्स
एक औरत का रेप हो रहा है भारत में एवरी 16 मिनट। हर 15 मिनट की जो तुम सांस ले रहे हो ना, उसके बीच में एक औरत का रेप हो चुका है। और तुम यहां बैठ के अपनी जिंदगी को ऐसे एंजॉय कर रहे हो जैसे कुछ नहीं हो रहा है। बेटा, आग यदि वहां पे लगी है ना, तो आग एक दिन तुम्हारे घर में भी लगेगी। तब तुम करोगे, तब तुम पूजा करने जाओगे, तब तुम भगवान को कोसोगे। दूसरे के घर में आग लगी है तो बड़े मजे आ रहे तुम्हें। और ममता के पीछे चलने के लिए भी औरत मिल गई यार उसको। मतलब कितनी चरित्रहीन हो चुकी है औरत यार, मतलब कितनी चरित्रहीन हो चुकी है। वी वांट जस्टिस करके जुलूस निकाले और उसके साथ औरतें खड़ी है। भाई क्या चल रहा है? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो पावरफुल है, हम तो गुंडों के साथ है ना, टीएमसी के, तो हमारे साथ क्या होगा। टीका लगा के दुर्गा माँ की पूजा करके आते वो औरतें, और दुर्गा के जिसके चीड़ फाड़ दिया ना उसको, उनको बचाने के लिए। और इतने सारे लोग तैयार है उनके साथ खड़े होने के लिए, अंधे लोग। अब तो आग लगेगी, अब नहीं रुक सकता ना। मैं तुमको 4-5 महीने पहले भी बताया था, इंडिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट कभी नहीं हुआ लाइफ में। ये चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है ना, जो तुम्हारे साथ होगा तभी समझ में आएगी। इसलिए भगवान ने नरक बनाया है, बड़े प्यार से बनाया है नरक भी। अच्छा, ऐसे ऐसे जो करेंगे उनका क्या होगा। अच्छा, उनके लिए मैं एक बढ़िया सी चीज बनाता हूँ। वैसे होता है ना, क्लास में जो टीचर समझाता है अच्छे से समझाता है, जो समझने वाला होता है समझ जाता है, जो नहीं समझता है तो टीचर उसके लिए भी बनाता है। अच्छा, ये जो है ये अहंकारी है, ये नहीं समझेगा, तो एक काम करते हैं, इसको इस यहाँ पे डालो। मतलब सुप्रीम कोर्ट यार कितनी एक्टिव थी यार अरविंद केजरीवाल के लिए, मतलब कितनी एक्टिव थी भाई। हर रोज सुनवाई हो रही है, हर रोज सुनवाई हो रही है। कोई नहीं बचाने वाला तुमको। लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो ऐसे ही सहते रहो। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं, अपने ऊपर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। अपन तो मरने के लिए तैयार है ना, अपने को क्या करना है जिंदगी में। बट जो हमको मारने की कोशिश करेगा उसको कुछ तो मिलेगा वापिस। खाली हाथ तो नहीं जाने देगा इस बार। पिछली बार खाली हाथ जाने दिया था मैंने, लेकिन नहीं, देखते हैं यदि तुम सत्य के साथ होते हो, तुम हाथ नहीं उठाते हो, तो क्या लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं? नहीं, कोई खड़ा नहीं होता है। मेरे को पुलिस वाली डरा रही है। अच्छा, वहां पे औरत भी थी, अच्छा वो आप पे गलत केस कर सकते हैं। साला गलत केस कर सकते हैं मतलब क्या है बे? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो तुम क्या पुलिस मेरे साथ हो, जिसके साथ हुआ है, कि तुम उनके साथ हो? सबका हिसाब होगा ना, सबका हिसाब होगा। बट ऐसे हिसाब नहीं होता, ऐसे नहीं होती है रेवोल्यूशन। वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इंडिया आजाद हो गया, तो वो गांधी को एट्रीब्यूट दे दिया। ओ गांधी ने ये किया था, क्या किया था गांधी ने?
कुछ नहीं किया गांधी ने। गांधी बैठ के अपना चिल मारा था, अपनी अपने पोतियों के साथ नंगा सो रहा था। साले जिस जिस देश में रामायण महाभारत है, सेम ही तो केस है ना भाई। रावण ने सीता का हाथ इसलिए नहीं लगाया कि वो रावण को पवित्र था, रावण को श्राप था। श्राप क्यों मिला था उसको? क्योंकि वो पहले भी रेप अटेम्प्ट कर चुका था, तो उसको श्राप मिला था, तो अब वो रेप नहीं कर सकता था। इनको लग रहा है कि वो रावण तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो था वो, आज के जैसे ब्राह्मण है वैसा ही ब्राह्मण था वो। शुक्राचार्य वाले ब्राह्मण। तो रावण ने देखो कितनी इज्जत रखी ना, कितने साल रखा, बट उसने कभी हाथ नहीं लगाया सीता को। मर जाता वो हाथ लगाता तो। कैसे लोग हैं यार, मतलब रावण के डिफेंडर आ गए भाई आज के टाइम में। युग खराब है, इसका तो इंडिकेशन बहुत आराम से समझ में आ जाता है ना, जब रावण के फैन बनने जग जाए राम की बजाय। इसका मतलब तुम राम नहीं बनना चाहते हो, तुम खुद ही रावण हो। जिस चीज को तुम फॉलो करते हो, जिस इंसान की तुम पूजा करते हो, जिस आइडिया की तुम पूजा करते हो, तुम ऐसे ही बन जाओगे। सब सो रहे हैं, बट कोई नहीं, सो यार तुम। यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि तब उसके क्या होगा, और ड्रामेटिक होगा। ये बहुत ड्रामेटिक टाइम आने वाला ना अभी क्योंकि इसमें उल्टा होने वाला है। अधर्म से जब धर्म में ट्रांजिशन होगा संसार का, तो बहुत ड्रामेटिक होगा वो। ये सारी आईआईटीज, ये देखो ना किसान आंदोलन में कैसे आगे थे। अब तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। हाँ? वो किसान आंदोलन का कोई मॉनेटरी रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट था लड़कियों की इज्जत से। हाँ, कहाँ गए ये LGBT कम्युनिटी, दिस कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी, दिस NGO, दैट NGO, कहाँ है? कहाँ है यूनाइटेड नेशन? मणिपुर में तो बड़े आ गए थे। ये सब भ्रष्ट है, तुम समझ नहीं रहे हो। इंटरनेशनल लेवल पे कोल्यूजन है, जिन अमेरिका ने तो प्रॉपर तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि भारत ने साथ नहीं दिया ना उसका, भारत न्यूट्रल रहा। तो ताकतवर इंसान के जब अहंकार पे चोट लगती है ना, तो वो अपने असली रंग को दिखाता है। तुम 90 हो, वो 10 है, और तुम भीख मांग रहे हो उनसे कि इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो। तुमको पता नहीं है क्या हुआ था? तुम पता नहीं कर सकते हो? सब कुछ हैक हो सकता है आज के टाइम में। उस प्रिंसिपल का फोन भी हैक हो सकता है, उस पुलिस के जो भी है DGP VGP उसका फोन भी हैक हो सकता है, ममता का फोन भी हैक हो सकता है। किस लिए है तुम्हारी टेक्नोलॉजी? सब सबूत आ जाएंगे ना बाहर अपने आप ही, किसने क्या कोलिजन किया है, किसने क्या बोला है, कौन कौन इन्वॉल्व था। बहुत इजी है ये सब जानना आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। मोबाइल कंपनी के पास तुम्हारा सारा डेटा होता है,
कि तुम्हारा मोबाइल किस लोकेशन में था किस टाइम पे। तुमको कैसे लगता है कि हमेशा हर टाइम ये फोन को कैसे पता चलता है कि उसकी लोकेशन क्या है? क्योंकि वो फोन जब तुम कॉल नहीं कर रहे हो तब भी कांटेक्ट में रहता है नेटवर्क से, अपनी लोकेशन देता रहता है। मतलब वो सब करने की बजाय लोग मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, वी वांट जस्टिस। भाई तेरे पास कैपेबिलिटी है ना, उसको यूज कर। तू टेक वाला है, तू टेक वाले में फायदा कर उसको। तू फिजिकली स्ट्रांग है, तू हथियार लेके निकल। तेरे को कानून का ज्ञान है, तू कानून के हिसाब से चल। कान बता उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कानून में कौन सा प्रोविजन है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है वहां पे? करो ना, कर्म करो। मोमबत्ती लेके निकलने से होता है संसार चेंज। संसार चेंज होता है जब तुम करते हो। इतने कैपेबल लोग और मोमबत्ती लेके वो 10वीं पास पुलिस वाले से तुम न्याय मांगोगे जो बिका हुआ है, जो कि पैसे दे के ही लगाया पुलिस में। 4-5 लाख रुपए दिए होगे तब जाके वो पुलिस में लगाया, वो तुमको न्याय देगा। बबल में जी रहे ना लोग, उन लोगों को पता ही नहीं है गरीब इंसान के साथ क्या क्या होता है दुनिया में, क्या क्या होता है। कोई भी मार के पीट के चला जाता है, कोई भी उनको औरत के साथ कुछ भी कर देता है। क्यों? हम तो दबंग हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो डॉन है इस दुनिया के। ये साला एआई को ऐसे लेके गार्ड में डालोगे क्या? हाँ, ये तब टेक्नोलॉजी ऐसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनी है कि क्या क्या गेम खेलने के लिए बनी है? मतलब तुम ये डिस्कस करते रहो एआई विल टेक ओवर नॉट, और वहां पे रेप हो रहे हैं कि हम तो एआई को कॉन्शियस कर देंगे। साला तुम सिचुएशन तो देखो तुम्हारी, जानवर जैसे तो तुम्हारा संसार है, एआई से डर रहे हो तुम। चलो बहुत हो गया ना, मेरे को अब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात करनी ही नहीं ना। अब एक्शन मोड में ही हूँ मैं। अब ये एक ही फोकस है ना लाइफ में, और कुछ नहीं है। बोल बोल के कोई फायदा नहीं है किसी को। माँ के पल्लू से बाहर निकलेंगे तभी तो। दूसरों की माँ तो दिखती नहीं है इनको। दूसरों की माँ तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, बिम्बो, मिल्फ। दूसरों की माँ तो मिल्फ है, तुम्हारी माँ ही माँ है। मिल्फ का फुल फॉर्म पता है? मदर आई वॉन्ट टू फक। सामने तो आना ही था, क्योंकि आज की सच्चाई नहीं है। जब अंग्रेज थे उन्होंने भी खूब औरतों की इज्जत लूटी है, उन्होंने भी अपने पावर का खूब किया है। जो मुस्लिम थे उन्होंने भी खूब किया है, अभी भी कर रहे हैं जहाँ पे उनके पास पावर है। बट सब आंख मूंद के इस लाइक, ओहो पैलेस्टीन, पैलेस्टीन में बच्चे मर गए। साले उन्होंने पहले क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? वो भगवान के लोग हैं। हाँ, एक औरत को नंगी करके ऐसे लेटा के लेके जा रहे हैं, वो भगवान के लोग हैं, भगवान का काम कर रहे हैं वो।
भगत सिंह ये सब काम करता भारत को आजाद कराने के लिए? क्या अंग्रेजों की बेटियों को नंगा करके लेके आ जाएगा किडनैप करके कि भारत को आजादी नहीं दोगे तो इसका रेप कर दूंगा मैं? करता भगत सिंह ऐसे काम? तुम समझ ही नहीं रहे हो। इनको समझ में नहीं आता असली क्रांतिकारी कौन है, सही साइड में कौन है और गलत साइड में कौन है। सब अपनी निजी दुनिया में ना हीरो बन के घूम रहे हैं यहाँ पे, हर जगह, हर गांव में। को लगता हो मैं कहीं पे जाता हूँ ना, लाइक तुम अकेले आए हो? नहीं, महादेव साथ है। वो महादेव तो सबके साथ है, तो क्यों पूछ रहे थे? क्यों पूछ रहे थे? जब तुमको जवाब पता है तो क्यों पूछ रहे थे? इसका मतलब तुम्हारे साथ नहीं है और तुम ढोंगी हो। सब गुरु बने बैठे भारत में, हम ज्ञान देंगे, हम ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान दोगे तुम? कुछ भी आता है तुम्हें? थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा है किसी भी चीज का? कुछ भी साइंस का कुछ आता है तुम्हें? हाँ, क्या ज्ञान दोगे तुम? सत्य को डरा के रखा हुआ है। किस तरीकों से? उनको ऐसे ये पेच में उलझा के सिस्टम के मरोड़ तरोड़ दो, थोड़े टाइम बाद सब भूल जाएंगे, फिर से होगा, फिर से लोग उठेंगे और धीरे धीरे ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही होता है, कितने सारे चीज नॉर्मलाइज हो जाएंगे सोसाइटी में। चलो डू समथिंग। तुम करना है करो, नहीं करना है तो भी देखो, अब मरने तो है वाले हैं लोग। मैंने पहले भी बताया, मेरे को मतलब ही नहीं है पापी मर रहे कि पुण्य करने वाले मर रहे हैं, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है। जो पुण्य करने वाले भी कौन सा उठ रहे हैं, हाँ पुण्य कर रहे हो हम तो तुम्हारे साथ है, वो कौन सा साथ में है? मैं तो अकेला ही लड़ रहा हूँ ना। पुण्य करने वाले कौन सा आके मेरी मदद कर रहा है? तो मारो सबको। ऐसा टाइम आने वाला ना, इंसान समझ नहीं पाएगा। लेकिन कोविड तो कोविड था, आप सोचो कि कोविड भी आ जाए, भूकंप भी आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, ठीक है, डॉक्टर स्ट्राइक पे है, महामारी आ गई, अब डॉक्टर स्ट्राइक पे है, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? पुलिस में पेच निकालोगे? ये लॉ के अंदर 32 सेक्शन के अंदर ऐसा ऐसा है। मजेदार है यार तुम लोग भाई, सही में मजेदार हो यार। मतलब क्या लेवल पे हो यार तुम लोग, गवार के गवार हो बिल्कुल, और अपने आप को तोपची समझते हो, इतना तोपची समझते हो, और एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला सकते तुम। क्या तोपची हो तुम? क्या तोपची हो तुम? क्या पावर है तुम्हारे पास? अरे सारे ब्रांड्स वैसे आ जाते हैं। तुमको क्या लगता है जिस समाज में अनरेस्ट होगा, ठीक है, ऐसी ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो तुम्हारी कंपनी चलती रहेगी, तुम्हारी इकोनॉमी चलती रहेगी, हाँ, तुम्हारी दुकान चलती रहेगी, उसमें आग नहीं लगेगी? तुम ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है? तुम ये समझ रहे हो कि लोग मूवी देखने जाते रहेंगे, ये जो मूवी स्टार हैं, यदि ये सब होता रहेगा समाज में, तुमको पैसे मिलते रहेंगे? हाँ भाई, कितने बेवकूफ हो यार तुम।
मतलब सब समाज ही टूट जाएगा तो इकोनॉमी तो रहेगी नहीं ना। जब एक आधे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को तुमने प्रॉपर ऐसे कर दिया है कि इनके साथ तो हम, ये तो जानवर है, इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी इनके साथ तो खेला जाता है, मतलब तो तुम क्या सोचते हो बच्चे कहां से पैदा होंगे? फिर इनोवेशन कर लोगे तुम, हाँ, फिर अपने स्टार्टअप कर लोगे तुम, फिर अपनी फिल्म स्टार बन लोगे तुम। भाई फिल्म स्टार तुम तभी हो जब तो जनता तुमको देखने आ रही है। जनता से बने हो तुम, जनता ने बनाया तुमको। ऐसे ही चलता वाला एटीट्यूड आ गया ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है इसलिए कि तुम चला रहे हो, हवा में थोड़ी चल रहा है कुछ भी। कोई भी ह्यूमन क्रिएटेड सिस्टम क्या अपने आप चल रहा है? क्या लीगल सिस्टम अपने आप चल रहा है? क्या पुलिस सिस्टम अपने आप चल रहा है? क्या हॉस्पिटल सिस्टम अपने आप चल रहा है? कोई चला रहा है ना, कोई जानबूझ के देख रहा है कि हाँ पापियों को बाहर निकाल रहा है। वो शाहजहां शेख तो ऐसे ही घूम रहा है, उसके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं आज तक। और वो तो एक है, वो एक थोड़ी था, उसके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उसमें। ये गुंडे लोग करते कैसे है? ऐसे ही तो करते हैं। देखो अब मैंने, मान लो मैंने किया, ठीक है, पहले गलत काम, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो मैं और लोगों को लेके आऊंगा कि तू भी आ, तू भी कर मेरे साथ। अब उसने एक बार कर दिया, अब उसका राज तुमको पता है, समझ गए? अब वो दो हो गए, धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे गांव का नाई, तुम्हारे गांव का पुलिस वाला, तुम्हारे गांव का चौकीदार, तुम्हारे गांव का ये सब की अब कॉम्प्लेक्स बन गया, एक नेटवर्क। सब मिले हुए हैं अंदर से, सब वही चाहते हैं। ये अजमेर 1992 में क्या हुआ था, देखा कभी किसी तुमने? पढ़ा है उसकी स्टोरी? यही हुआ था। एक स्कूल की, सोफिया स्कूल की, ये मान के चलो कि आधे से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ, आधे से ज्यादा, सिस्टमेटिकली। और उसमें एक नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। वो उन लड़कियों को ऐसे पकड़ के जबरदस्ती करते थे, फिर उसका फोटो खींच के कि हाँ देखो तुम्हारा न्यूडम, तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे। उसको बोलते थे कि तू अपनी दोस्त को किसी को बोल, उसको लेके आ, और ऐसे बढ़ता जाता था नेटवर्क। उसका भी इंसाफ नहीं मिला है, पता तुम्हें? क्या तुम इंसाफ कर रहे हो सालों? 1992 का केस है वो। बेसिकली पाप के सिस्टम चलाने में लोगों ने अपनी भागीदारी अपना ली है, क्योंकि सब भ्रष्ट है ना अंदर से, करना किसी को कुछ नहीं है। कितनी केस है यार ऐसे, वही मैं बोला, तुम लोगों को पता ही नहीं है ना, तुम लोग तो पता नहीं किस हवा में जी रहे हो, जैसे कोई नई चीज है। ऐसे सब एकदम से नहीं होती ना कोई भी चीज, उसका बीज बहुत पहले से बोया जाता है। फिजिकल में वो आने में तो बहुत टाइम लगता है, मेंटली थॉट्स में उसको बोया जाता है, तुम्हारे विचारों में डाला जाता है। पहले विचारों में कैसे डाला जाता है? ऐसे ही करके। जो लोग देखते हैं एग्जाम्पल कि ये हुआ था और इस बंदे को कुछ नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा ही नहीं, अपने पास तो जान पहचान है, अब हम ऐसे करके कुछ घुमा फिरा के अपना टाइम निकाल देंगे। जेल में भी जाएंगे तो भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वहां से भी अपना गुंडा राज चलाएंगे, तो क्या दिक्कत है?
मतलब सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ नहीं है लोग सिर्फ अपने अहम के साथ है। चाहे वो ये IIT वाले हो, उनको किसान आंदोलन पे तो प्रोटेस्ट करना आता है, बट असली जो चीज़ है उस पर प्रोटेस्ट करना नहीं आता है। चाहे वो ये मर्दो नोट ओल्ड मैन, भाई तुम्हारी बात कौन कर रहा है? तुम्हारी बात कौन कर रहा है? हम बात तो कर रहे हैं उन क्रिमिनल्स की। ये नोट ओल्ड मैन क्या, तुम इनसिक्योर लोग हो क्या? जब तुमको पता है तुम गलत नहीं हो तो तुम तो इनसिक्योर हो गए नहीं। जब मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं तो मुझे तो लगता नहीं है, जब ये सब चीजें होती है कि मुझे पता है कि मैं तो नहीं करता, इसका मतलब तुम करते हो वो चीजें, इसलिए तुमको चुभ रहा है। नोट ओल्ड मैन क्या मतलब है इसका? हम क्या सारे मैन के ऊपर इंसाफ चाह रहे हैं क्या अभी? है? मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेन इश्यू, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग कि हाँ ये इस चीज में इंसाफ होना चाहिए, तुम उसको कुछ अलग ही फाइट बना रहे हो, अपने अहंकार की फाइट बना रहे हो। वो ये देखो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसके सामने फेक रेप अटेम्प्ट का केस हो गया था, तो क्या करे? दिक्कत कहां पे है? उसको तो भाई लड़का लड़की फाइट बोलो, दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है पुलिस की, कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। ना पुलिस ने इस मामले में काम किया, ना पुलिस ने उस मामले में काम किया। जब वो फेक कर रही थी तो पुलिस वाले ने क्यों नहीं देखा उस टाइम पे? तो मतलब बेसिकली इनकॉम्पिटेंट पुलिस है बीच में दोनों चीजों में, बट तुम उसको नहीं देख रहे हो, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम तो आपस में ही क्यों इनसिक्योर हो तुम? क्योंकि तुमने पता है तुम्हारे हाथ भी उसमें गीले हुए हो चुके हैं, तुम्हारे हाथ में भी खून लगा हुआ है, इसलिए जैसे ये बात उठती है तो तुमको भी लगता है। ये मोस्ट ऑफ दी लड़कियां है ना, इनको समझ में नहीं आता। इनके जो भाई जो ऐसे सीधे बनते हैं ना, ये बाहर जाके दूसरे लड़कियों के साथ वही करते हैं। और थोड़ा टाइम और दे दो, 10-15 साल देख ला, ये स्टेप सिस्टर बना के तुम्हारे साथ में वही करेंगे। तो टाइम की बात है। मतलब क्या है यार ये सब चीज? मतलब नॉट ऑल मैन आर नॉट लाइक दैट। जब मैन ऐसे है ही नहीं तो तुमको प्रूव क्यों करना है? क्या प्रूव करना है तुमको? वो ये बोल रहे हैं क्या ऑल मैन आर लाइक दैट? ये क्या मतलब हुआ? वो ये बोल रहे हैं कि इस केस में जो है हमको इंसाफ चाहिए। उसमें तो लड़की भी इन्वॉल्व थी एक, ये बेंगल वाले केस में, तो मैन वुमेन का बात ही नहीं हुई। ये क्या? अकेली लड़की खुली तिजोरों की तरह होती है, ऐसे तो फेमस डायलॉग होते हैं हमारे। और इस पे किसी को समझ में नहीं आता कि तुमको वो कॉमेडी के नाम पे क्या बेची जा रहा है। मतलब ये ऐसा हो गया कि जी मैंने अपने कमरे में छोटा लॉक लगाया और चोरी हो गई, तो बोलेगा, मेरे को बोलेगा कि तूने छोटा लॉक क्यों लगाया, है ना? तूने चोर के लिए आसान क्यों बनाया? ये क्या मतलब हुआ यार? ये क्या मतलब हुआ? चाहे मैं अपना दरवाजा खुला छोड़ू, लो तो लो रहेगा ना, वो चीज तो मेरी रहेगी ना। इतना गैस लाइटिंग हुआ ना, मतलब सीरियसली वुमेन का इतना गैस लाइटिंग हुआ ना भाई, मतलब बर्दाश्त से बाहर है अब तो। उनके मम्मी पापा खुद गैस लाइट करते हैं। इज्जत का सवाल है, इज्जत तो लुट चुकी है, इज्जत का सवाल क्या है? इज्जत का ही तो सवाल है, इसीलिए तो लड़ाई करनी है। तुमको अपनी इज्जत का ख्याल है, तुमको लड़की की इज्जत का ख्याल नहीं है। पॉइंट वो है। IIT में भी हो चुके ऐसे केस, तुमको पता है? IIT बॉम्बे में भी हो चुका है ऐसा केस, IIT के अंदर। तुमको क्या लगता है ये रुक जाएगा? ये लोग रुक जाएंगे? भाई जितना वो रिपीट करते हैं ना, उतना उनको और बढ़ता है, क्योंकि अब उनको और एक्सपीरियंस आता है।
कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे करके अवॉइड करना है, इस सिचुएशन में ऐसे करके बाहर निकलना है मेरे को, यदि इस सिचुएशन में तो ऐसे करके बाहर निकलना है। मूवी इंडस्ट्री क्या है, सब कुछ बॉयकॉट करो ना। अरे यार, अब देश की इकोनॉमी चलाता कौन है? जो आम काम करने वाला इंसान चलाता है। उस नेता के घर में वो चाय बनती कैसे, वो दूध कौन देता है? हाँ, वो सब्जी कहाँ से आती है? वो ममता बनर्जी क्या खाती है? कहाँ से आता है? वो खुद उगाती है। सब फार्मर्स बोलो हम नहीं देंगे तुमको कुछ भी। वो पुलिस वाले के घर कैसे चल रहे हैं? वो प्रिंसिपल का घर कैसे चल रहा है? बोलो नॉन कोऑपरेशन, हम नहीं देंगे तुमको। यदि समाज यदि अलग हो जाए और एकजुट हो जाए तो क्या औकात है उनकी? क्या करेंगे वो? जबरदस्ती तुमसे बोलेंगे कि नहीं खाना देना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं देंगे हम, नहीं बेचेंगे हम तुमको खाना। समाज एक साथ है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, इसलिए तो वो लोग जी रहे हैं। तुम टैक्स दे रहे हो तभी तो उस पुलिस वाले के हाथ में गन है। मान लो तुम सबने टैक्स देना बंद कर दिया, क्या करेंगे? तुम सबको जेल में डालेंगे? हम तो नहीं सपोर्ट करते ऐसे पुलिस का, हम तो नहीं सपोर्ट करते ऐसे गवर्नमेंट का जो हमारे खिलाफ हो। बोले हम टैक्स दे, पैसे दे, और वो मेरे साथ कुछ गलत हो तो मेरे खिलाफ ही खड़ी हो गवर्नमेंट। ये क्या है? मत करो, सब बंद कर दो। ट्रांसपोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, फल वाले फल वाला बंद कर दो, अपने में ही दो। इन सब लोगों को दो ही मत कुछ भी सामान। क्या करेंगे वो? जिंदा तो उसी चीज पर रहेंगे ना, खाना तो खाना पड़ेगा ना। ये इमिग्रेंट क्या क्या है? वो तो बताया ना, वो तो डायन है ना, वो तो ममता बनर्जी तो, वो तो क्लियर था ना, संदेश खली में ही क्लियर हो गया था। कितने तरीके लगाए उसने उसको प्रोटेक्ट करने के। इन लोगों को सिर्फ पॉलिटिक्स दिखती है ना, ये पावर का नशा बोलते हैं इसको, ताकत का नशा। इसको लगता है कि हाँ ऐसे नंबर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वो बांग्लादेश इमिग्रेंट्स क्या है? वही तो लोग हैं जिनकी किताबों में लिखा हुआ है कि रेप करो, किताबों में लिखा हुआ है उनके। तो वो तो ऐसे ही सपोर्ट ही करेंगे ना, ऐसे ही उसका जो उसको रेप कराने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। उनको तो चाहिए, उनका तो धर्म ही वही है। भाई उनके धर्म में डिटेल में लिखा हुआ है, जो काफिर है, जो तुम्हारी बात नहीं माने तो उसको पहले ऐसे काटना, फिर उसको ऐसे मारना, फिर उसको ऐसा करना। उनको सारी इंस्ट्रक्शन मिलती है अच्छे से। तो ऑब्वियसली वो तो एक साथ जुड़ेंगे ये सब लोग। बट वो पॉइंट ही नहीं है ना, जो चाहे कोई भी सपोर्ट करता हो उसको, पॉइंट वो है कि पूरी भारत की जनता अब उसके साथ है। ठीक है, तो जब पूरे भारत की जनता है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, सारी जनता बोल रही है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, सारी जनता को पता है कि ऐसा हुआ है, तो क्या चीज रोक रही है तुम लोगों को? सारी चीज में स्ट्राइक कर दो। कि कल को वेट करोगे कि किसी इंजीनियर का हो तब इंजीनियर लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वेट करोगे कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा करोगे तुम? हाँ, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है तुम्हें। ये स्वामी विवेकानंद ये सब काम ही नहीं करता ना, क्योंकि लोग झूठे बहुत है ना आज के। स्वामी विवेकानंद की फोटो लगा के कितने सारे फर्जी बाबा मिले मेरे को, कितने सारे। और वो क्या करते हैं तुमको पता है? वो क्या करते हैं? 95% आश्रम में रेप होता है, 95%। और ये नॉलेज ये ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर एक साधु ने बताया है, जो कि रह चुका है, जो हर चीज में सेवा कर चुका है, जो मतलब एटलीस्ट 60 साल का तो है। उसने खुद बताया ये कॉन्डोम्स मिलते हैं आश्रम के बाहर।
अड्डे बन चुके हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के। क्या बात करते हो यार तुम। ये सब है बचा ही नहीं ना यार, ये सब डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। तो वो तो तुमको क्लियर हो जाना चाहिए था अभी तक। दुर्गा की पूजा तो करती है ना वो खुद भी करती है दुर्गा की पूजा। स्वामी विवेकानंद का क्या मतलब है, क्या है दुर्गा? और सोचो ना, उसके पीछे चलने के लिए औरतें भी तैयार है। वी वांट जस्टिस वाले प्रोटेस्ट में औरतें भी तैयार है उसके साथ चलने के लिए। ये काली दुर्गा भी है वहीं पे उसके साथ खड़ी हुई, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है। बंगाल तो खत्म है ना, बंगाल में कुछ नहीं बचा अब। वो बांग्लादेश में देख लो, ये पूरा बंगाली तो था पहले उसके दो हिस्से किए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, कि ये मुस्लिम का होगा ये हिंदू का होगा। अब इस वाले हिस्से में भी वो मुस्लिम बढ़ते जा रहे इमिग्रेंट ले रहे। भाई क्यों बनाया था वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल का मतलब क्या है? वेस्ट वाला बंगाल, और ईस्ट बंगाल जो था वो बांग्लादेश था। तो बेसिकली इन लोगों को मतलब ही नहीं है ये सब चीजों से। वो पहले तुम्हारा एक अलग पाकिस्तान बनाएंगे, फिर बोलेंगे कि भारत को भी एक और पाकिस्तान बनाओ, फिर बोलेंगे एक और बनाओ, फिर बोलेंगे एक और बनाओ। वो धीरे धीरे काटते काटते, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है ना, उनको ह्यूमैनिटी से मतलब ही नहीं है। दे आर कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड पीपल। इंसानियत का धर्म नहीं समझ में आता उनको ना यार। पैलेस्टीन में जो इजराइल में हुआ, ठीक है, वो सब होने के बाद जहाँ पे आज भी होस्टेजेस है उनके पास, आज भी होस्टेजेस है हमास के पास, ठीक है, आज भी लड़कियां हमास की होस्टेजेस हैं। कैसे कैसे छोटे बच्चों को मारा है उन्होंने। बट इतना प्रोपेगेंडा है, इतना ज्यादा ये अंडर द गेम स्टफ होता है ना, पूरा ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कंसेंसस को मीडिया के थ्रू। बंगाल तो जगना ही नहीं है ना, बंगाल का तो खत्म है बंगाल तो। और ये बंगाल की क्या बात है, तमिलनाडु में देख लो, वो बोलता सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन को मैं खत्म कर दूंगा। उसकी माँ मंदिर में जाके पूजा करती है। मतलब पॉइंट वो नहीं है। अब वही ये सब साइड में जाने के बजाय कोई पॉइंट ही नहीं है ना। पॉइंट वो है, इस केस में छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ना ही नहीं है इसको। कैमरा लगा के रखो अपना तुम उस चीज के ऊपर कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। मत छोड़ो उस पे। एक केस चाहिए हमें जहां पे इन लोगों का अहंकार टूटे, इन लोगों को समझ में आए कि इनका गेम नहीं चलेगा। और जब वो एग्जाम्पल सेट होगा तो धीरे धीरे फिर लोगों को समझ में आएगा कि इसको खेला कैसे जाता है। जो अगली बार होगा तो उनको समझ में आएगा कि ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो ये सब में डाइग्रेस करने के बजाय फोकस रखो, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि तुम्हारा फोकस टूटे, कि तुम थक जाओ प्रोटेस्ट करते करते। यही चाहते हैं वो लोग, इसलिए वो डिले कर रहे हैं कि लोग कितने दिन प्रोटेस्ट करेंगे, कितने दिन इकट्ठा होंगे, है ना। मतलब जब किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन 1.5 साल चल सकता है, जहां पे वो सड़कें रोक के बैठ के अपना घर बना के वहां पे खिचड़ियां बन रही है, दारू पी रहे हैं लोग, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहां गए वो हरियाणा के पहलवान जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये सब की हैरेसमेंट की बात कर रहे थे? अब क्या हुआ? हाँ फोगाट, क्या होगा? तुम बता था ना तुम फर्जी हो, करप्ट हो तुमको कोई लेना देना ही नहीं है ह्यूमन सेफ्टी से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नो। अरे जो जिस पुलिस ने भी पहले उसको सुसाइड डिक्लेयर करवाया, सब कुछ करवाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना।
ये सिर्फ इंसान का मतलब ये नहीं है ना उसके कल्प्रिट को बोले। जिन लोगों ने भी प्लानिंग प्लॉटिंग की, जिन लोगों ने भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, सबको पकड़ो ना, सबको अंदर डालो। देखो उनके कॉन्टेक्ट कहां कहां से। तो तुम लोग उस, जब तक वो सब लोग नहीं पकड़े जाए तब तक छोड़ना ही नहीं है ना उस चीज को। जलाते रहो, ऐसे कंटेंट बनाते रहो, कंटेंट बनाते रहोगे कि लोगों के अंदर आग जलती रहेगी। थॉट से स्टार्ट होता है सब, मेंटल पावर से। वो मेंटल पावर तुम्हारी डेवलप होगी जब तुम उसको विजुलाइज कर पाओगे। वो विजुलाइज करने का एक तरीका है कि तुम उसको किसी विजुअल वीडियो फॉर्मेट में डाल रहे हो या किसी फॉर्मेट में डाल रहे हो। रोक दो, सारी मेडिकल सर्विस रोक दो, इमरजेंसी सर्विस भी रोक दो। क्यों देनी है इमरजेंसी तुमको? उस लड़की की इमरजेंसी थी, उसमें पुलिस ने कुछ किया? हाँ, वो इमरजेंसी थी कि नहीं थी? बट तुमको इमरजेंसी तो जरूर सर्विस देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? ये मोरालिटी सिर्फ तुम पे अप्लाई होती है, दूसरे वाले पे अप्लाई नहीं होती है मोरालिटी। ये सब मोरालिटी वोरालिटी में मत पड़ो। डॉक्टर्स ने सारे यदि स्ट्राइक कर दी, एक बार सारी मेडिकल सर्विसेज रोक दी, तो जितने भी ये लालू यादव है ना ऐसे पड़े हुए हैं, ये सब मरेंगे फिर। डॉक्टर, केमिस्ट, दवाई देना बंद करो। कितने सारे लोग दवाई पे टिके हुए हैं जिनके बिना दवाई के जिंदा नहीं रह सकते, जो लोग, बंद करो। बोला हम नहीं दे रहे। तुम अपना काम कर नहीं रहे हो, तुम चाहते हो कि हम अपना काम करते रहे। क्यों? ताकि तुम अपना गेम खेलते रहो, तुम हमको उल्लू बनाते रहो। वही मैं बोल रहा हूं ना, जनता को उठना पड़ेगा ना, लोगों को उठना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। इंसाफ ज्यादा ऊपर है कि तुम्हारी मोरालिटी ज्यादा ऊपर है? लोग मर जाएंगे इधर, तो लोग तो अभी मर रहे हैं, लड़कियां तो अभी भी मर ही रही है। मरने दो, तभी उनको रियलाइज होगा कि हाँ पहले इस इश्यू को सोल्व करना है। यदि इश्यू सोल्व नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जितने भी एक गंडे रात को बाइक लेके घूमते हैं उनको सीधा इनकाउंटर करो ना। वो तो वेट कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि हाँ बस कोई मेरे को टारगेट मिले और हम अपना हाथ मारे। एक बात समझो तुम, पावर जो होती है ना वो एज्यूम्ड पावर होती है, ठीक है? वो खाकी वर्दी तुम भी खरीद सकते हो दुकान से। खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो ना। वो गन तुम भी खरीद सकते हो, खरीद सकते हो ना। वो कानून तुम भी पढ़ सकते हो ना। बट उस इंसान को क्या, जो कि तुमने एज्यूम करके रखा हुआ है कि उस इंसान के पास पावर है, तुम जिस दिन एज्यूम करना छोड़ दोगे कि इस इंसान की अथॉरिटी से ऊपर नहीं है, ये इंसान नहीं है जो मेरे से ज्यादा अथॉरिटी है इसकी, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। तो जो पैसे लेके वोट देने वाली जनता है वो तभी समझेंगी जब वो मरने लगेगी, जब उसको समझ में आएगा कि असली पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है। गवर्नमेंट के पास कहां से आता है पैसा? टैक्स लेती ना वो। गवर्नमेंट क्या कोई उद्योग धंधा कर रही है क्या? कुछ नहीं कर रही वो। बेसिकली तुम्हारे पैसे से एक सिस्टम बनाया गया, पुलिस का सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम, सबकी सैलरी तुम दे रहे हो, ठीक है? और वो सिस्टम में यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, तुम जाओ तो अब वो तुमको फंसाएंगे। तो तुमको क्यों उस चीज को सस्टेन करना है? क्यों सस्टेन करना है तुमको उस चीज को? ये सब ईगो वाले हैं ना, ये सब। इनको सच्चाई से मतलब नहीं है, इनको समाज को सुधारने से मतलब नहीं है,
इनको सिर्फ अपने गेम फिट करने हैं कि ये मेरी ये टीम है, ये जीतनी चाहिए बस। इनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि कोई इंसान के साथ क्या हो रहा है, इनको इस सब चीज़ मतलब नहीं है। वही ना, मिडिल क्लास टैक्स देती है, उससे इन लोगों के चलने के लिए ये लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ आती हैं। आती कि नहीं आती? कहाँ से आती है इन लोगों के पास घूमने के लिए गाड़ियाँ? पेट्रोल कहाँ से आता है? वो तुम देते हो ना। ये नेता 10-10 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, उसका पेट्रोल का पैसा कौन देता है? तुम देते हो। तुम समझ नहीं रहे हो, वो तुम्हारे नौकर हैं बट वो तुम्हारे मालिक बन के बैठ गए हैं तुम्हारे पैसे से। देश की अर्थव्यवस्था तुम चला रहे हो, वो लोग नहीं चला रहे। उन लोगों को तो इकोनॉमिक्स का कुछ पता ही नहीं है यार। चले 10वीं पास ही तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेगा, तुमको पता है उसको अर्थव्यवस्था समझ में आती है? अर्थव्यवस्था समझ में आती तो पास नहीं कर लेता अपना स्कूल। तुमको समझता उसको साइंस समझ में आती है, मैथमेटिक्स समझ में आता है, उसको सिर्फ समझ में आता है कि समाज में फूट डाल के और इसको गेम को गोल गोल कैसे घुमाया जाए, बस। असली चीज जो असली मैटर करती है वो समझ में नहीं आती उसको। ये सेल्फिशनेस, वही तो अहंकार है। जब तो लोग अपने अहंकार में डूबे रहेंगे तो वैसे ही होगा। तो उसमें डिवाइड एंड रूल वाली चीज है ना, कि इंडिविजुअलिज्म करके हर लोगों को डिवाइड कर दो, फिर तुम हर एक इंडिविजुअली किसी के साथ कुछ भी करते रहो, क्योंकि अब वो इंडिविजुअल है, अब उसका कोई सपोर्ट करेगा नहीं। क्या हुआ उस कर्नाटक के एमपी का? कुछ हाल पता है तुम्हें? हजार वीडियो मिली थी उसकी, हजार। समझ सकते तुम कितना खतरनाक सीरियल रेपिस्ट बंदा है वो? क्या हुआ उसका? क्या चल रहा है उस केस में? वीडियो मिल गई ना, अब तो सबूत तो सामने है, खड़ा है। क्या चाहिए तुम्हें और? बताया ना मैंने, अरविंद केजरीवाल पकड़ा जाता है तो रात को कोर्ट खुल जाती है भाई, कपिल सिब्बल लेके पहुंच जाता है, अगले दिन ही जजमेंट आ जाता है कि हाँ ये केस आगे बढ़ाओ, खत्म। बट यहाँ पे तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर तुम्हारा खेल खेलने के लिए बैठे हुए हम यहाँ पे। नॉन कोऑपरेशन ही है ना। सोसाइटी यदि नॉन कोऑपरेट करना बंद कर दे इन लोगों से, तो इन लोगों का कैसे चलेगा सिस्टम? तुम्हारे कंधों पे चल रहा है ये सिस्टम। हाँ मतलब दे डोंट गिव अ शिट ओनली व्हेन इट हैज नॉट हैपेंड टू देम। मैं बताया ना, कोविड में बड़े बड़े लोग पिघल गए थे भाई। जब उनको पता चला ना मौत सामने आने वाली है, ऑक्सीजन लेने के लिए कैसे भाग रहे थे। ये तब तक ही चलता है ना, नोबडी गिव्स अ शिट अनलेस उनको अपने कर्मों का हिसाब मिलने लग जाता है, तब उनको सब याद आ जाता है। तब उनको, अरे तुमने महाभारत नहीं देखी क्या? जितने भी अधार्मिक वाले लोग थे, ठीक है, वो दुर्योधनाश में क्या बोलता है? ओ ये तो अधर्म है, गदा युद्ध में तो यहाँ पे वार नहीं करते। अब तेरे को धर्म याद आया है? हाँ, अब तेरे को रूल रेगुलेशन याद आई है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो कर्ण क्या बोलता है? वो मेरे को रथ का पहिया निकाल ले दो, ये ऐसे रूल के खिलाफ है, ऐसे नहीं लड़ते हैं। अब तेरे को रूल समझ में आए हैं, तो समझ में सबको आता है, बट वो आखिरी में समझ में आता है। जब मौत सामने खड़ी होती है ना, तब समझ में आता है उनको। तब उनको समझ में आता है कि ओ भाई, धर्म पे चलना चाहिए था। ये महाभारत तो बिल्कुल टिपिकल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इस चीज का।
कि जब तक अधर्म वाले राज करते रहते हैं, वो दुर्योधन ने देखो ना सब कुछ किया उसने, ही गोट अवे विद इट, गोट अवे हुआ ना, राजा बन के बैठा वो तो। इतने सारे उसने कांड किए, कभी उसको ऐसे मारने की कोशिश की, कभी लाक्षागृह बनाया, कभी ऐसा किया, कभी ये षड्यंत्र रचा, कभी वो षड्यंत्र रचा। He was getting away with it, जैसा कि अभी ये बंगाल गवर्नमेंट कर रही है। बट फाइनली क्या हुआ, मरा ना वो, और मरते टाइम क्या समझ में आया उसको, धर्म समझ में आया, क्या बोलने लगा वो। नहीं, अधर्म तो जीतने वाला है ही नहीं ना। तुम लोग ये सब समझ ही नहीं रहे हो, वही मैं बता रहा हूँ। देखो धर्म तो आना है, या तुम्हारी लाश पे आएगा, ठीक है, मुझे मतलब ही नहीं तुम धर्म के साथ हो अधर्म के साथ हो। तुम यदि बोल नहीं रहे हो, तुम लड़ नहीं रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, तो कोई पॉइंट ही नहीं ना तुम्हारे तुम लोगों का। तो मेरे पास बहुत शक्तियाँ है यार, तुम लोग क्या समझते हो मेरे को, तुम लोगों को समझ में नहीं आता यार भगवान क्या चीज़ होती है भाई। तुम लोगों को समझ में नहीं आता संसार कैसे बना है, कैसे चल रहा है। दो साइंस के इक्वेशन लेके प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आज रेन की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो तुमको लगता है कि तुमको समझ में आता है कि रेन कैसे होती है। कृष्णा तो आएंगे, बट ये देख रहा है कि जब कृष्णा आएंगे तो कौरवों के साइड कौन लड़ने वाला है और पांडवों के साथ कौन लड़ने वाला है, बस। जीतेगा तो धर्म ही, सत्य को हरा थोड़ी सकता कोई। सत्य सत्य इसीलिए है कि वो ट्रुथ है, उसको कितना झूठ बोलोगे तुम। झूठ बोलने वाले को बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, सच वाले को कुछ नहीं बोलना पड़ता, जो कि सत्य है वो। इस संसार को बहुत तरीके से तबाह किया जा सकता है, और ये तो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, ये तो मैंने मोशन में डाल दिया है। मैं किस जितने को जिसको ही मारना ना मारो, बहुत सारी आर्मी है मेरे पास भाई। तुमको क्या लगता है 1.5 साल से भूतों को रिक्रूट कर रहा हुआ है। अब तुम लोगों को डाउट होता हुआ भूत होते कि नहीं होते, मैं तो साथ में रहता हूँ उनके ना। भाई ना संसार ये अपनी अपनी दिमाग ज्यादा लगाता है, वो ये नहीं देखता कि भगवान आके क्या बोल के गए थे, कृष्ण ने आके क्या बोला है। वो भगवान है, उसको तुम भगवान बोलते हो, तो उसने जो एक एक चीज बोली है वो सत्य होगी। जिसने बोला है कि वो फिर से आएगा तो वो आएगा। मजाक में बोल रहे क्या वो, हाँ? नहीं नहीं, मौत में तो सबको समझ में आता है, क्योंकि वो अहंकार जो है ना वो मौत के टाइम खत्म होता है, तब सबको समझ में आता है मौत के टाइम। क्योंकि इन लोगों का कोई कैरेक्टर तो है नहीं, चरित्र तो ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मौत के टाइम तो जरूर बोलेंगे कि यार ऐसे नहीं मारते यार, देखो ये तो वायलेंस है, ये कितनी वायलेंस कर रहे हो तुम्हारे साथ, साले तूने क्या किया है। इंसानियत तू जो कर रहा है उसमें अप्लाई नहीं होती है, हम जो कर रहे हैं उसी में अप्लाई होगी इंसानियत। नहीं नहीं, धर्म को शक्ति की जरूरत नहीं है, धर्म शक्ति धर्म के साथ ही रहती है हमेशा। ये मान के चलो कि ये धर्म को इस लाइक कि राम को अपनी ताकत दिखा ली थी भगवान को, तो इसलिए उसने रावण को तैयार किया कि यार तो थोड़ा बढ़िया सा गुंडा बन, ताकि मैं बता पाऊँ कि मेरे पास कितनी ताकत है। देखिए जो भगवान है जैसे सब बनाया है उसको तो सब पता है, सब उसकी कंट्रोल से होता है ना। हाँ वो सेल्फिश ईगो में अटके रहेंगे तो वही है ना, बट पॉइंट वो नहीं है ना। पॉइंट वो है कि यदि सब भी धर्म में लटके रहेंगे तो भी धर्म ही जीतेगा। तुमको क्या लगता है ये धर्म मतलब सिर्फ तुम्हारा कोई धर्म है? ये धर्म में पूरी सृष्टि का कैसे रचना हुई है, ठीक है। यदि इंसानियत को पूरा खत्म भी करना पड़े ना तो भी धर्म तो वही रहेगा, सच्चाई तो वही रहेगी। तो यदि सारे इंसान यदि करप्ट हो जाए तो सारे इंसान को भी साफ किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही बोला, तुम लोग कितना ग्रांटेड लेके चल रहे हो यार। तो क्या लगता है कि तुम लोग सब लोग यदि धर्म पे चलना लग जाएंगे
तो हम उसको मैनिपुलेट कर लेंगे जो सच्चाई है। हाँ, भगवान की आंखों में धूल झोंकोगे तुम, जिसने तुमको बनाया उसकी आंखों में धूल झोंकने वाले हो तुम। हाँ, सत्य तो जीतता ही है, क्योंकि तुम वो देखो ना, जो दुनिया का सत्य है वो सत्य रहेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर जो झूठ है उसको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे बंगाल की गवर्नमेंट बोल रही है, कभी पुलिस वाला आके झूठ बोल रहा है, कभी प्रिंसिपल आके झूठ बोल रहा है, कभी वो ममता झूठी प्रोटेस्ट निकाल रही है। उनको कितना नौटंकी करनी पड़ रही है ना, कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, कितना पाप हो रहा है उनसे, क्योंकि वो ऐसा ही है। कृष्ण ने बोला ना, बुरा काम और बुरा काम कराता है और अच्छा काम और अच्छा काम कराता है। तो एक बार जो बुरे काम की जिसको लत लग जाए और उसको सजा ना मिले, तो वो इंसान और मोटिवेटेड हो जाता है, हाँ ये तो मुझे करना है, नशा चढ़ जाता है उसको। बट सत्य तो थोड़ी छुप जाएगा उससे। मान लो मैं कुछ हूं, ठीक है, अब सारे इंसान बार बार आके बोलते रहे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सिद्धि है, ठीक है, सब आके बोले तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, तो क्या उनके बोलने से नहीं होगा? सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य तो सत्य ही रहता है ना यार, तुम समझो इस चीज को। वो किसी के झूठ बोलने से या किसी के मैनिपुलेट करने से नहीं बदल जाएगा। हाँ, मैनिपुलेट करने से तुम लोगों को बदल सकते हो, क्योंकि लोग करप्ट हैं। बट मुझे लोग चाहिए ही क्यों है? अपने पास महादेव है भाई, एक डमरू से वो संसार को तबाह कर सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? डमरू क्या है? ये पूरा संसार वाइब्रेशन है। शिव जो है उनको हर एक वाइब्रेशन समझ में आती है। जब उसको हर एक वाइब्रेशन समझ में आती है तो वो अपने डमरू से वाइब्रेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। वो ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि एक वाइब्रेशन जाके धरती के अंदर भूकंप लेके आ जाए, वो एक वाइब्रेशन आके कहीं पे बारिश करा दे, एक वाइब्रेशन आके कहीं पे कुछ एक और चेंज कर दे। जब तुम यूनिफिकेशन में होते हो शक्ति के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो तुमको सब समझ में आता है। तुम्हारे लिए खेल है। फिर मैंने कितनी बार ये मैनिपुलेट किया एनर्जी बासुर से भी। क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वाइब्रेशन ही है, तुम चेंज कर सकते हो ऊर्जा। मंत्र क्या है, वो भी वाइब्रेशन ही है, तुम वाइब्रेशन बदल सकते हो। चलो बहुत हो गया यार, अभी अभी प्रसाद लेने का वक्त आ गया है। चलो रील भी डालेंगे एक छोटी सी। मतलब तुम लोग नहीं चाहते क्या कि तुम उस चीज का हिस्सा बनो जिसने पूरे समाज को बदल दिया हो? उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनो जो सच के साथ खड़ी हो और बोला देखो हमने ये करके दिखाया है। ऐसी हालत होती थी, तुम अपने बच्चों को बताओ, देखो ऐसी हालत होती थी, हमने इतनी इतनी लड़ाई लड़ी, ऐसे ऐसे हम लड़े, अब हम हीरो बन के निकल रहे हैं। तुम नहीं चाहते वैसा बनना? नहीं चाहते तो मत चाहो, मैं तो चाहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ महादेव साथ है अपने। ये इंस्टाग्राम तो वाले तो AI है ना, इन्होंने वो कीवर्ड डाले हुए हैं कि हाँ इस वाली चीज को फ्लैग करना, ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज सही है। यही तो है मशीन जो है टट्टी सी। बट लोग भी ऐसे ही हो गए ना आज के टाइम में। डिफरेंस क्या है रोबोट के अंदर और इंसान के अंदर? कि इंसान लाइव चीज को देख सकता है, वो कॉन्शियस है, वो देख सकता है उसके सामने क्या हो रहा है। रोबोट को नहीं दिखेगा। रोबोट जो होगा पहले इसमें कमांड दे रखी होगी कि यदि ऐसी चीज हो तो पहले ये वाली कोड रन करना, फिर ये वाला कोड रन करना, फिर ये वाला कोड रन करना। तो आज के हमारा सिस्टम तो वैसे काम कर रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा कि सामने हो रहा है। रोबोट बन गए वो लोग। अच्छा पेरेंट्स वाले तो मेन प्रॉब्लम है यार, मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ। ये पेरेंट्स ने बच्चों को अपना बुढ़ापे का इंश्योरेंस बना के रख दिया है। अब वो भगत सिंह के भी माँ बाप थे कि नहीं थे, उनका भी बुढ़ापा गया, गुजरा कि नहीं गुजरा किसी तरीके से। मतलब कोई लड़ाई मत करो, फिर सब अपने अपने स्वार्थ में अपनी अपनी सोचते रहो। ठीक है ना, छोड़ो अभी, चलो अभी चलते हैं। थैंक यू सिंधु जी, आप बात करने के लिए, बहुत सही लगा, आपने भी बहुत सही बातें बोली। पर देखो मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, अपने पास वो जो महादेव है ना,
अपने साथ जो चल रहे हैं, सारी सिद्धि उन्होंने बनाई है, सारी विद्या उन्होंने बनाई है, सारे तंत्र मंत्र उन्होंने बनाए हैं, इस पूरी प्रकृति को उन्होंने बनाया है। तो मुझे करने के सारे तरीके आते हैं, कैसे कैसे मैनिपुलेट करना है। और मैं तो करके ही रहूंगा। जो सिर पे कफन बांध के जो चलता है ना इंसान, उसको डर नहीं लगता। फिर सामने वाले को डर लगना चाहिए उससे, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो नोबडी बन चुका है। उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। वो जिएगा तो सिर्फ अपने सत्य के लिए, नहीं तो नहीं जिएगा। You won't allow me to join live videos. मेरा एक वीडियो भी डिलीट किया था ना। ऐसे तो सेंसर करता है। और ये इसका भी मैंने डाला था ना आगे कि अभी तो जैसे ये AI जो है वो तुम्हारे रिटन वर्ड को डिटेक्ट करके कर रही है, बट मान लो स्लोली अब वो AI जो है वो तुम्हारे थॉट्स भी पढ़ने लग जाए, जो कि अभी वो कर रही है, तो तुमको वो चीज सोचने से ही बंद कर देगी। वो उसको भी वो कर देंगे, सोच को भी बोल देंगे कि तुम ये सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो? तो टेक्नोलॉजी का यूज कोई अच्छी चीज के लिए नहीं होने वाला है, इसी चीज के लिए होने वाला है। देखना तुम, कंट्रोल करने के लिए। बट अपन तो पागल है, हम तो मेंटली इल इंसान है ना। सर्टिफिकेट दे के रखा हमको तो बहुत सारे लोगों ने। तो मेंटली इल इंसान से तो सावधान रहना चाहिए, वो तो कुछ भी कर सकता है। जय सिंह जी, बाय बाय, नमस्कारम।